دوستو یہ ہیں ابراہیم ترورے، افریقہ میں یہاں پر موجود ایک دیش مطلب کہ برکینا فاسو کے لیڈر۔ ابھی ان کی عمر بھی بمشکل 36 یعنی کہ 36 سال ہے، جو ان کو اس وقت پوری دنیا کا سب سے کم عمر کا راشٹرپتی بناتی ہے۔ لیکن دوستو موجودہ دور میں دنیا کا سب سے کم عمر کا پریزیڈنٹ ہونا ہی ان کی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک اتفاق ہے، ورنہ ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ وقت سے میڈیا لگاتار ان کو پورے افریقہ کا سب سے پربھاوشالی نیتا مان رہی ہے، بلکہ ایکسپرٹس لگاتار یہ مان رہے ہیں کہ اگر ابراہیم ترورے کا ابھار اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہوتا رہا تو ممکن ہے بہت جلد ہی آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکیں گے کہ ابراہیم ترورے صرف افریقہ ہی نہیں بلکہ اوپر موجود جو مڈل ایسٹ ہے، مطلب کہ پورا مسلم ورلڈ ہے، اس پورے ہی علاقے میں سب سے مشہور اور سب سے اثردار نیتاؤں میں گنے جائیں گے، جن سے ٹکرانا یا پھر جن سے نپٹنا خاص طور سے ویسٹرن ورلڈ کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ برکینا فاسو کے جو غریبی اور اندھیرے کے لیے جانا جاتا ہے، اس دیش میں پیدا ہونے والے 36 سال کے اس نیتا میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے، ایسی بھی کیا خوبی ہے کہ اس کو نہ صرف اس کے اپنے دیش کے اور افریقن لوگ ہی امیدوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایکسپرٹس کے دوارا ویسٹرن ورلڈ کے لیے افریقہ میں سب سے بڑا خطرہ بھی مانا جا رہا ہے۔ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، برکینا فاسو کے اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو جانیں گے کہ 1896 میں افریقہ کی زیادہ تر کنٹریز کی طرح یہ دیش بھی دراصل فرانس کی کالونی بن گیا تھا۔ 1960 میں آزادی ملی، مگر یہ کہنے کو ہی آزادی تھی، کیونکہ آزادی دینے کے بعد بھی فرانس نے اس کے آس پاس کی باقی زیادہ تر افریقن کنٹریز کی طرح اس کو بھی انڈائریکٹلی اپنے کنٹرول میں ہی رکھا۔ مطلب کہنے کو تو یہ لوگ آزاد تھے، مگر ان کے دیش کی گدی پر کون بیٹھے گا، کون راج کرے گا، یہ سب پیرس سے کنٹرول ہوتا تھا۔ ان کی چاہے کرنسی ہو، اکانومی سے جڑی ہوئی باقی چیزیں ہوں، ٹریڈ ہو، فورن ریزروز ہوں، سب کچھ فرانس کے کنٹرول میں تھا۔ مینلی ان کے نیچرل ریسورسز اور خاص طور سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ علاقہ دنیا میں سونے کا گڑھ مانا جاتا ہے، یہ سب کچھ بھی فرانس کے ہی کنٹرول میں تھا، کیونکہ سونا نکلتا تو ان کی زمین سے ہی تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جو سونا نکالنے کے لیے یا باقی آگے کا پروسیس کرنے کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز چاہیے ہیں، جو مائننگ وغیرہ کا پورا پروسیس ہے، وہ سب کچھ فرانس کے ہی کنٹرول میں تھا۔ اس کی کمپنیز ہی ان ساری چیزوں کو مینج کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے سونا انہی کا ہونے کے باوجود بھی ان کا نہیں تھا۔ ڈیفنس کے معاملے میں بھی فرانس پیچھے نہیں رہا، بلکہ اس نے برکینا فاسو سمیت آس پاس کی جتنی بھی افریقن کنٹریز تھیں جن پر اس کا ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹ کنٹرول تھا، ان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے، اس طرح کے الگ الگ طرح کے ایگریمنٹس کیے کہ یہ سارے دیش نہ چاہتے ہوئے بھی فرانس کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئے، اور ان ایگریمنٹس کی وجہ سے اب کبھی بھی سیکیورٹی کو وجہ بنا کر فرانس ان دیشوں کے اندر اپنی فوج بھی بھیج سکتا تھا، جو ظاہر ہے اس نے بھیجی بھی، اور جن میں سے زیادہ تر کنٹریز میں تو آج بھی ہے یا ابھی 1-2 سال پہلے تک ہوا کرتی تھی۔ ساتھیو آپ خود بھی سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کا ایک ایسا دیش کہ جس کی زمین کے نیچے اتنا زیادہ گولڈ ہے کہ اس دیش کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس میں سے 80% ریشیو صرف گولڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دیش کے اندر کوئی بھی گولڈ ریفائنری موجود نہیں ہے، کیونکہ فرانس نے ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دیا، اور یہ سارے کام وہ خود ہی کرتا رہا۔ انہی ساری چیزوں کا ہی نتیجہ تھا کہ لمبے عرصے پہلے ہی آزادی حاصل کر لینے کے باوجود بھی برکینا فاسو سمیت یہ جتنے بھی افریقن دیش تھے، یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو ہی نہیں سکے۔ غریبی، بھوکمری، ہائی کرائم ریٹ، کرپشن، پولیٹیکل ڈسٹربنس، یہی ساری چیزیں ہی ان کا مقدر بن گئیں، کیونکہ ان کے پاس تھا تو بہت کچھ، بلکہ دنیا کے اور علاقوں میں موجود دیشوں سے بھی زیادہ تھا، لیکن ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیز کب تک چھپی رہتی یا کب تک برداشت کی جاتی؟ عام لوگوں میں غصہ بڑھنا تھا، جو کہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور ماحول 2010 کے دور سے ہی کافی خراب ہونے لگا تھا۔ ہر طرف پولیٹیکل ڈسٹربنس نظر آنے لگی تھی، الگ الگ طرح کے گروپس نے ہتھیار اٹھانے بھی شروع کر دیے تھے۔ پھر 2015 کے الیکشن کے ذریعے سے کرسچین کبورے کو برکینا فاسو کا راشٹرپتی چن لیا گیا، کہ جن کو فرانس کا بھی سپورٹ حاصل تھا، اور ظاہر سی بات ہے فرانس کی برکینا فاسو میں آرمی بھی موجود ہوا کرتی تھی، مگر ہر گزرتے وقت کے ساتھ برکینا فاسو کے حالات اب برے سے برے ہوتے چلے گئے، اور پھر آخر کار جنوری 2022 کا وقت آیا کہ جب برکینا فاسو کی ملٹری نے ملک کے انہی برے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے تختہ پلٹ کیا، مطلب
मतलब एक coup किया और देश का कंट्रोल संभाल लिया एक आर्मी जनरल ने जिनका नाम था पाउल हेनरी डमीबा। लेकिन साथियों, डमीबा के केस में भी बुरी बात ये थी कि उन्होंने जितने भी वादे किए थे, अब वो चाहे आम लोगों से किए थे या अपनी आर्मी से किए थे, वो उनको पूरा नहीं कर सके। खास तौर से वो अपनी आर्मी को ऐसे एडवांस हथियार तो प्रोवाइड नहीं करा सके कि जिनकी मदद से वो ताकतवर होकर देश ही में मौजूद अपने दुश्मन ग्रुप से लड़ सके, बल्कि अब तो आर्मी की सैलरीज वगैरह भी नहीं मिल पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि आर्मी में ही मौजूद जो कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे, जिनकी मदद से ही अभी कुछ वक्त पहले डमीबा ने देश का कंट्रोल हासिल किया था, वही डमीबा से नाराज हो गए और सिर्फ 8 महीने के बाद ही मतलब सितंबर 2022 में मिलिट्री ने एक और coup किया, एक और तख्ता पलट किया और इस बार अपने इस जनरल को हटाकर एक नए इंसान को बैठाया। और इस बार इन सारे सीनियर ऑफिसर्स में से जिस एक इंसान को बैठाया गया था उसका नाम था इब्राहिम तरोरे। इब्राहिम ने गद्दी संभालने के कुछ महीने के बाद ही मतलब कि जनवरी 2023 में पहले तो फ्रांस के साथ उनका जो डिफेंस पैक्ट था, जो मुआहदा था, उसको खत्म किया। वैसे तो इस कदम ने ही दुनिया को काफी हैरान किया, मगर शुरू में ज्यादातर लोगों को यही लगा कि भला फ्रांस जैसा ताकतवर देश बर्किना फासो से इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा। लेकिन बर्किना फासो के इस नए और बहुत कम उम्र लीडर ने तो साथ ही धमकी भी दे डाली और बाकायदा 1 महीने की टाइमलाइन दी कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्रांस की फौज को बर्किना फासो को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ फ्रांस ने भी जब इब्राहिम तरोरे के इस तरह के तेवर देखे तो खामोशी के साथ बर्किना फासो से अपनी फौज को निकाल लिया। ये इब्राहिम तरोरे का पहला बोल्ड स्टेप था कि जिसने इंटरनेशनल मीडिया और मेनली वेस्टर्न मीडिया का ध्यान इब्राहिम तरोरे की तरफ खींचा था। और इसके कुछ वक्त के बाद ही ये रशिया भी पहुंचे और वहां भी तमाम अफ्रीकन लीडर्स के सामने इन्होंने फ्रांस का नाम लिए बिना ही वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको खूब टारगेट किया। पुतिन से मुलाकात के बाद अब रशिया भी इस बात पर राजी हुआ कि वो बर्किना फासो की आर्मी की मदद करेगा। रशिया की तरफ से अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बर्किना फासो भेजा गया ताकि वो इनकी आर्मी को एडवांस ट्रेनिंग दे सकें और साथ ही में ये वादा भी किया गया कि फ्यूचर में ये कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा। मतलब रशिया हर तरह से बर्किना फासो की आर्मी की मदद करता रहेगा। अपनी फौज को जल्द से जल्द अपने दुश्मन के मुकाबले में ताकतवर बनाने के लिए इब्राहिम ने जहां एक तरफ चाइना से आर्म्ड व्हीकल्स का सौदा किया तो वहीं दूसरी तरफ टर्की के मशहूर ड्रोन्स भी खरीदे, जो ड्रोन्स वाकई उन जंगों में बहुत मददगार साबित हुए। जो जंगें दरअसल बर्किना फासो की आर्मी अपने ही देश में मौजूद अपने दुश्मनों से लड़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हीं जंगों और बुरे हालात की वजह से 21 लाख के करीब बेघर होने वाले लोगों में से बहुत जल्द ही 3 लाख के करीब लोग इब्राहिम तरोरे की वजह से वापस अपने घरों में पहुंचने में कामयाब रहे। अब जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि बर्किना फासो की जमीन गोल्ड से मालामाल है, इनके पास हद से ज्यादा सोना है, लेकिन क्योंकि ये रॉ फॉर्म में ही होता है और इस तरह से बर्किना फासो ज्यादा कमाई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि रिफाइनरी वगैरह कोई है ही नहीं, क्योंकि फ्रांस ने सब चीजों पर कंट्रोल ले रखा था। तो इसीलिए 2023 में इब्राहिम तरोरे ने अपने देश की पहली रिफाइनरी की भी बुनियाद डाली, जो न सिर्फ फ्यूचर में बहुत जल्द ही बर्किना फासो की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी, बल्कि बर्किना फासो जैसे गरीब देश में बेशुमार रोजगार भी पैदा करेगी। देश में रिफाइनरी की बुनियाद रखने के अलावा अब इब्राहिम की जो हुकूमत है वो दरअसल उन विदेशी कंपनी से उनके परमिट भी वापस ले रही है कि जो गोल्ड माइनिंग किया करती थी। बल्कि कुछ वक्त पहले ही गवर्नमेंट ने 2 गोल्ड माइंस को नेशनलाइज भी किया है, जिनकी ओनरशिप मतलब जिनका मालिकाना हक यूके की कंपनीज के पास था। मतलब हुकूमत कुदरत की तरफ से उसके देश को मिली हुई जो सबसे बड़ी नेमत है यानी कि गोल्ड, उससे जुड़ी हुई हर चीज पर सही तरीके से क्रैकडाउन कर रही है ताकि उससे होने वाला हर फायदा सिर्फ उसके देश को ही मिल सके और साथ ही देश के अंदर इसी की वजह से बेशुमार रोजगार के मौके भी पैदा हो सकें। इब्राहिम तरोरे ने अगस्त 2024 में भी उस वक्त दुनिया को काफी हैरान किया था कि जब उन्होंने $32 मिलियन के करीब मिलने वाले उस कर्ज को ठुकरा दिया था कि जो IMF की तरफ से बर्किना फासो को मिलने जा रहा था। अब इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया था ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लीडर जो ऑलरेडी इस तरह के एक्शंस ले रहा है, इस तरीके के स्टेप्स उठा रहा है कि जिसके जरिए से वो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से निकल सके, तो जाहिर सी बात है वो IMF का कर्ज लेकर भला उल्टा उसी जाल में जाकर क्यों फंसना चाहेगा। इब्राहिम तरोरे ने खुद भी इस कर्ज को ठुकराने के पीछे एक वजह यही बताई थी कि अफ्रीकन नेशंस के पास वो सब कुछ है कि जिसके जरिए से वो अपने आप को तरक्की दे सकते हैं और अपने आप को
ताकतवर बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इब्राहिम तरोरे बिल्कुल सही कह रहे थे। वाकई अफ्रीकन देशों के पास वो सब कुछ है कि जो किसी भी इलाके को तरक्की हासिल करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग कभी इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सके। 2024 में ही इब्राहिम तरोरे ने एग्रीकल्चर मतलब कि काश्तकारी से जुड़ी हुई भी बेशुमार चीज़ें, अब वो चाहे ट्रैक्टर्स हों या फिर अदर व्हीकल्स हों, मोटर पंप्स हों, फर्टिलाइजर्स हों या बाकी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें चाइना से लेकर अपने यहाँ के किसानों में फ्री में बांटी थी, ताकि किसी तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड को भी अपने देश में जल्द से जल्द इम्प्रूव किया जा सके। लंबे वक्त से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जंग वगैरह और इसके अलावा बाहरी ताकतों का इंटरफेयर झेलने वाले बर्किना फासो के अंदर खुराक की कमी भी एक बड़ा मसला है, जिससे निपटने के लिए इब्राहिम तरोरे ने वैसे तो बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी है, मगर फिलहाल के लिए रशिया से अच्छे रिश्ते बन जाने की वजह से जनवरी 2025 में रशिया ने 25,000 टन गेहूं बर्किना फासो को डोनेट किए हैं। बर्किना फासो के जिसको नाम के लिए ही सही लेकिन आज़ाद हुए लगभग 6 दशक गुजर चुके थे, वहाँ पर आज भी 79% आबादी ऐसी है कि जिसको बिजली नहीं मिलती है। 21% के करीब जिस आबादी को बिजली मिलती भी है तो उनको 24 घंटे या 20 घंटे नहीं बल्कि बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूरे देश के लेवल पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए इब्राहिम तरोरे चाइना की मदद से लगभग 25 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मुसीबत से निपटा जा सके, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए इस मामले में उनकी रशिया मदद कर रहा है, क्योंकि 2023 के रशिया अफ्रीका समिट में ही इब्राहिम तरोरे ने रशिया से इस मुसीबत से निपटने के लिए अपने देश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में मदद मांगी थी, जिस पर रशिया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और बाद में इनके बीच मुआहदा भी हो चुका है। इस एग्रीमेंट की ज्यादा डिटेल या फिर टाइमलाइन तो बाहर नहीं आई, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर लगा ली गई कि अब इस एग्रीमेंट के बाद बहुत जल्द ही बर्किना फासो के लोगों के घर अंधेरों से उजालों में बदल जाएंगे। और अगर जल्द ही रशियन कंपनी की मदद से बर्किना फासो अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से बिजली हासिल करने लगा, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ भी है, तो इस तरह से ये पूरे अफ्रीका का साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से बिजली हासिल करेगा। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर अफ्रीकन कंट्रीज के रोड्स या फिर उसके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो देखा होगा तो ये महसूस किया होगा वो आज भी ऐसे हालात में है कि मानो हम दुनिया के किसी इलाके को 17वीं या फिर 18वीं सदी में देख रहे हैं। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया गया है, ताकि कनेक्टिविटी को इजी और स्मूथ बनाया जा सके। हमें उम्मीद है कि वीडियो में मेंशन की गई बेशुमार चीज़ों में से कुछ तो ऐसी होंगी कि जो आपको वाकई हैरान कर देने वाली लगी होंगी, जबकि कुछ ऐसी भी होंगी कि जो बहुत नॉर्मल लगी होंगी। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें नॉर्मल आपको सिर्फ इसलिए लग सकती हैं क्योंकि आप दुनिया के किसी और इलाके में बैठकर देख रहे हैं। ज़रा इन चीज़ों को एक बार बर्किना फासो या इसके आसपास के इलाकों में बैठकर देखिए तो ये आपको किसी एक नई ज़िंदगी से कम नहीं लगेंगी। एक ऐसी नई ज़िंदगी और एक ऐसी उम्मीद कि जिसकी तलाश उनमें से किसी को पिछले 50-60 साल से थी तो किसी को 100 सालों से थी। इसीलिए तो इतने कम वक्त में इतनी कम उम्र का एक लीडर पूरे अफ्रीका में छा चुका है, मशहूर हो चुका है और मानो अफ्रीकन देशों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। बाकी दोस्तों, इब्राहिम तरोरे की इस पूरी कहानी पर आप लोगों का क्या नज़रिया है, क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।